Good morning, students. This is Mr. PJ Titus. So, students, today we are going to discuss about modal verbs. Today, I will give you only the introduction, and tomorrow, one by one, we will discuss that. So, today's topic will be modal verbs. So, you can see here, this is called models. So, before entering to this video lecture, I would like to request you to subscribe this channel. At the same time, hit the bell icon also, and if it is possible, to forward to your friends and relatives. So, something that we need to remember. Okay, model. There are two kinds of models. One is called model auxiliaries, and another is called semi models. Model auxiliaries. What are model auxiliaries? Can, could, may, might, shall, will, should, would, must. These are called model auxiliaries. And we may see that needn't, daren't, used to, all are called semi models. Hmm. So there are three characters in the models. Number one, when we use models, we need to put there always first form of verb. Okay, so we need to put their first form of verb. So according to the tense, we have first form, second form, and a third form. But whenever we think about models, we need to fill only first form of verb. Then after second thing, we need to understand that either the subject is singular or plural. That doesn't matter, but the model will be always usual. Means the same models. Suppose I is the singular subject. I can do it. She also a singular subject. She can do it. They, this is a plural subject, but they can do it. Like this way you have to make. Okay, then third important thing we need to understand, that first of all, when there is a model, suppose can, okay, can, okay, so there should not be use of ing, eh? Suppose scanning, maying, made, sold, etc. So we have three form of verb. According to that way, we should not apply it. Okay, so let me tell you about the uh, what negative form. Suppose can is there and a cannot. At the same time, short form can't. Could, could not, couldn't. May not, might, might not, mightn't. Shall not, shan't. Will not, won't. Should not, shouldn't. Would not, wouldn't. Must not, mustn't. Are to, ought not to, ardent to, need not, didn't, dear not, daren't, used to, use not to, or used to. So these are called the full form and short form, or positive and negative. Okay, so that's very simple, and I think you don't have any doubt about this. Then let us discuss one by one. Okay, so you may see this. This is can. eh? This is can, and how can go.
सबसे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा और हिंदी में बता देना चाहता हूँ। मॉडल एक्सलरी जो है वो मॉडल एक्सलरी वर्ब एक्चुअली दो प्रकार का है। एक तो मॉडल ऑक्सिलरी है और दूसरा होता है सेमी मॉडल से। अब ये सब चीज़ों को मैं इंग्लिश में पढ़ करके सुना भी दिया। तो उसमें तीन प्रमुख बातों को हमें दिमाग में रखना है। सबसे पहली बात तो है कि मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा मॉडल एक जैसा ही रहता है। फिर उसके साथ साथ मॉडल्स की जो इन्फिनेटिव फॉर्म है, ठीक है, और जो पार्टिसिपल जिस फॉर्म है ना, वो कभी भी मॉडल्स में नहीं होता। जैसे कि सल का सैलिंग, कैन का कैनिंग, मे का माइंग, इस प्रकार का नहीं होता है। तो अभी हम देखेंगे कि मॉडल्स का इस्तेमाल और किस किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कैन का यूज ऑफ कैन। ओके, सो कैन का यूज के बाद बाकी का जो यूज है वो सभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज तो कैन का यूज को हम देखेंगे। इसमें जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, जैसे कि एबिलिटी है, डाउट है, अस्टोनिशमेंट है, परमिशन है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, ये सभी चीज़ों के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके खोल खोल करके आपको बताता हूँ। कैन, कैन का जो पास्ट है कुड भी है। ठीक है, कैन का पास्ट कुड है। तो चलिए पहले तो हम कैन का इस्तेमाल को देखते हैं। प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेबिलिटी, वर्तमान योग्यता या क्षमता। ठीक है, वर्तमान की जो योग्यता या तो फिर क्षमता के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर 3 एग्जाम्पल्स। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल्स यू कैन अंडरस्टैंड आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, है ना। मैं इस जो क्वेश्चन सबको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट एबिलिटी को या तो फिर कैपेबिलिटी को सक्षम मतलब यहाँ पर दर्शाया जाता है। ठीक है, शी कैन लिफ्ट 100 kg weight at a time. Okay, he can repair this watch. So all the three sentences what I read for you, this shows the present ability of the subject. Okay, नंबर 2, उसके बाद उसको परमिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, परमिशन बोलो तो प्रेजेंट परमिशन, जिसको लेस फॉर्मल और इनफॉर्मल कहा जाता है। जैसे कि आपको किसी का कोई चीज़ को इस्तेमाल करना हो, सपोज यू वांट टू यूज समबडीज थिंग, है ना, सच वे यू कैन यूज दिस मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज योर पेन डियर फ्रेंड, कैन यू गाइड मी ब्रदर। ओके, ये सभी हैं। नंबर 3, प्रेजेंट थियोरेटिकल और जनरल पॉसिबिलिटी। ओके, ये प्रेजेंट थियोरेटिकल और जनरल पॉसिबिलिटीज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब कोई भी व्यक्ति मिस्टेक कर सकता है, ये कि संभावना को दर्शाता है ना, सामान्य संभावना जिसको हम कहते हैं। वी कैन लर्न बाय मिस्टेक, कैन इट बी अ मर्डर। ठीक है, इन सभी के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद हम और एक चीज़ को देखते हैं, पजलमेंट और इम्पेशंस बाय इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट कैन ही मीन, ये एक पजलमेंट है। वेयर कैन आई स्टडी, इम्पेशंस है। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर इस प्रकार होता है, इन प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस। जो प्रोबेबल कंडीशनल होता है, जिसको संभावना वाले जो कंडीशनल वाक्य होते हैं, इसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ यू रिक्वेस्ट ही कैन हेल्प यू। ओके, इफ़ यू रिक्वेस्ट ही कैन हेल्प यू, ये एक संभावना वाली बात आती है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम देखते हैं, इफ़ यू 6 में,
कैन प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव, हैव प्लस verb third फॉर पास्ट डिडक्शन और assumption, भूतकाल के कार्य के अनुमान हेतु भी ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि ही वेंट अर्ली सो ही कैन हैव कॉट द बस। ओके, पहले मैं बताया था इसमें फर्स्ट फॉर्म का वर्ब इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें थर्ड फॉर्म का वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। वो भूतकाल के कार्य को अनुमान लगाने हेतु उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो नेगेटिव के लिए हम देखेंगे कैंट। फॉर एग्जाम्पल, आई कैंट डू इट, आई कैंट लिफ्ट इट, यू कैंट यूज इट, कैंट वी मेक मिस्टेक, शी कैंट बी माई सिस्टर, ही वेंट लेट सो ही कैंट हैव कॉट द बस। तो इसी प्रकार से कैन का इस्तेमाल को हमने आज सीखा है। सो कल हम देखेंगे कुड का इस्तेमाल, फिर मैं का इस्तेमाल, है ना। एक्चुअली कैन और कुड ये दोनों एक ही पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें प्रेजेंट एबिलिटी को शो किया जाता है तो उसमें पास्ट एबिलिटी को शो किया जाता है। चलिए, जैसा भी हो, आज के लिए वीडियो लेक्चर इतना है। अगले वीडियो के साथ मैं आपसे कल मिलूँगा। थैंक यू, माय गॉड ब्लेस यू।